हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग सीए एग्जामिनेशंस। In this video, I am going to discuss the RTP released for CA Final May 22 attempt for paper 7, that is direct tax laws. In this video, we are going to cover the objective questions of the revision test paper that has been released by the institute. So let us start. Before directly going on to the questions, let us first understand that which study material is relevant for us. So the particular study material which has been prescribed by the institute that will be relevant for us is as per the Finance Act 21. So we are going to study, as we all know, we are going to appear the examinations for the provisions applicable to assessment year 22-23, that is Finance Act 21. And all the notification circulars issued up to 31st of October will be applicable in our case. The relevant assessment year is 22-23. So what is the correct edition? बहुत बार ये होता है कि हम लोगों की बुक्स पुरानी है या हमारे पास लेटेस्ट मटेरियल नहीं था जब हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोगों की जो बुक्स हैं वो रेलेवेंट एडिशन के हिसाब से नहीं है तो वी शुड नो दैट व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू कवर, क्योंकि जब तक हमें मटेरियल सही नहीं पता होगा विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो October 21 edition of the material is based on the provisions amended by 21 and notifications. So ये हम लोगों के लिए रेलेवेंट रहेगा. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. शुरुआत करते हैं. सबसे पहला जो केस सिनेरियो दिया है, now the questions in the RTP are really good, and as we all know, the most of the questions that the institute puts in any RTP are mostly focused on the amendment portion or the changes, so that automatically makes अ पॉइंट कि अमेंडमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट रहेंगे. जो भी सारे चेंजेस आए हैं वो बहुत रेलेवेंट रहेंगे. जो भी काफी मेजर चेंजेस हैं दैट हैव ऑलरेडी रिलीज्ड एज स्पेसिफिक वीडियोस on the channel. I'll be sharing the link along with this video, so you can refer them. In case of any doubts, we can discuss. चलिए, so शुरू करते हैं. पहला केस सिनेरियो. It is a very very good question, very very important for the upcoming examination, and let us discuss. So Mr. Prem is a partner in two firms, X and Company Mumbai and Y and Company Delhi. दो firms में partner है Mr. Prem. X and Company and Y and Company has four partners. X and Company has four partners, including Prem, who share profits and losses equally. Mr. Prem resigned from X and Company on 1st of April 21. On the said date, the capital balance stood at 32 lakhs. In order to settle the dues of Mr. Prem, the firm revalues its land for the first time since purchase. The valuer also valued self-generated goodwill at 70 lakhs. Firm has the following capital assets. तीन लैंड्स है हमारे पास और गुडविल है. ठीक है, ये हमको कौन सी फर्म की इंफॉर्मेशन दी है? ये हमको एक्स एंड कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है. In April 21, X and Company gave land at Nagpur and 15 lakhs money to Mr. Prem to settle his capital balance. ठीक है. So काफी हद तक हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के एक आइडिया लग गया होगा कि हम कौन से वाले पर जा रहे हैं. हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म वाले सेक्शंस के आसपास जा रहे हैं. अब देखते हैं एग्जैक्टली हम लोगों से क्या डिमांड करी है क्वेश्चन में, बट थोड़ा हमारा माइंडसेट उस डायरेक्शन में चला जाए. हमेशा याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितना हो सके दिमाग में प्रोविजन को ग्रास्प करने की कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो केस सिनेरियो दिया है, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कुछ भी हो, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रोसीडिंग टू. जितना ज्यादा हम इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे उतना हमारे लिए सॉल्व करना इजी होता जाएगा. ठीक है, तो एक्स एंड कंपनी की कहानी यहाँ खत्म करी उन्होंने. द फर्म वाई एंड कंपनी डिसॉल्व्ड ऑन 1st of March. एक रिटायरमेंट का केस है, एक डिसोल्यूशन का केस है. ठीक है, चलिए. डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स लैंड एट चंडीगढ़, मोहाली एंड गुड़गांव ऑन द सेम डेट टू 3 पार्टनर्स. जब फर्म ही बंद हो गई तो सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना. जो फर्स्ट वाला केस था उसमें आप सिर्फ रिटायर हो रहा है प्रेम, तो आपने सिर्फ प्रेम को पेमेंट करा है. प्रेम, अक्षय एंड आरव रिस्पेक्टिवली, who were sharing profits and losses equally. The particulars of these lands are given here under. Land at Chandigarh given to Prem, land at Mohali given to Akshay, land at Gurgaon given to Arav. डेट ऑफ परचेज दिया है, कॉस्ट दिया है. ठीक है, वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है. यहाँ पर भी अपने को उन्होंने पूरी लैंड्स की वैल्यू वगैरह दे रखी है. इन एडिशन प्रेम एंड अक्षय वर गिवन मनी ऑफ 8 lakhs and 11 lakhs रिस्पेक्टिवली ऑन 1st of March 22. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस दिए हुए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया. क्वेश्चन एज सच अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दो फर्म्स हैं, प्रेम जो है वो दोनों में कॉमन पार्टनर है. एक्स में से वो रिटायर हो रहा है, वाई बंद हो गई.
तो बेसिकली दोनों ही फर्म्स का काम उसका खत्म हो गया। एक्स में आपको देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो एक्स ने पैसे दिए हैं अपना प्रेम को और लैंड दिया है, और वाई ने भी लैंड और सब कुछ अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड वाई। अभी जो 9B सेक्शन में चार्जेबिलिटी आती है, हम सब लोग ऑलरेडी 45(4) और 9B के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो 9B में हम लोगों की जो टैक्सेबिलिटी आती है दैट इज नॉर्मल, जैसे हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है इन दी हैंड्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स कंसिडरेशन माइनस हमारा ट्रांसफर एक्सपेंसेस वगैरह, तो ठीक है चलो इसमें दिया नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन माइनस हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन लगा करके हम गेन निकाल देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम किसके हाथ में निकालना है, हमको एक्स और वाई दोनों के हाथ में निकालना है। तो एक्स एंड कंपनी पर चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमको, सेल्स कंसिडरेशन हमने ट्रांसफर करा है लैंड एट नागपुर। लैंड एट नागपुर कितनी वैल्यू है, 45 लाख की वैल्यू है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है 25,40,000। 25,40,000 को हमको करना पड़ेगा इंडेक्स, तो इंटू 317 डिवाइडेड बाय लैंड कब खरीदी है 2015, तो 15-16 का देख लेते हैं अपन इंडेक्सेशन। ठीक है चलो, सो 254 से डिवाइड, ये देखिए हम सॉल्यूशन हमारे पास है 31,70,000 है ना। तो सेल्स कंसिडरेशन 45 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 13,30,000 का गेन आएगा एक्स के हाथ में। एक्स के हाथ में एक ही लैंड ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ 13,30,000 का गेन आएगा। अब आ जाते हैं वाई के हाथ में। तो वाई तो तीनों लैंड ट्रांसफर कर रहा है, तो तीनों का गेन निकालना पड़ेगा है ना। तो चंडीगढ़ वाला जो है वो प्रेम को दिया है 62 माइनस 18.4 का इंडेक्सेशन, ये 11 का है, तो इंडेक्सेशन कब का लगेगा हमारा 11-12 दैट इज 184। दूसरे वाले पर 15-19 अप्रैल में 15-16 दैट इज 254 एंड 2011 फरवरी 10-11 का हमारा है 167। तो ये हम लोगों को कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। सेल्स कंसिडरेशन मतलब हमारी जो मार्केट वैल्यू दे रखी है वो हमने सेल्स कंसिडरेशन में रखा। देन हर एक की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिस्पेक्टिव ईयर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमने इंडेक्स कर दिया, तो हमारे गेन्स आ गए 30,30,000 इस वाले लैंड का आ रहा है। देन 39,98,000 अक्षय को जो लैंड ट्रांसफर करी उस पे आ रहा है, और आरव को जो लैंड ट्रांसफर करी है उस पर आ रहा है 38,30,000। सिंपल है कैलकुलेशन, नॉर्मल हम लोगों ने वो करा है, हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट करा है ना। तो ये आ गया हमारा गेन 1,08,58,000 का टोटल गेन आ रहा है वाई एंड कंपनी के हाथ में। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर जो आएगा 8,58,000 हमारा वाई के हाथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल हम लोगों ने कर लिया है ना। चलो आगे चलते। What would be the capital gains taxable under the head 45(4) in the hands of X and company? Now this is something very very important. ये जो सेक्शन है ये हमारा चेंज हुआ है पूरा है ना, हमारे पर्टिकुलर रेलेवेंट पीरियड में इसमें अमेंडमेंट आया है। सो अगेन that becomes very much relevant for us. तो देख अब हम लोगों को 45(4) में अगर आप लोगों को याद हो तो हाउ डू वी कैलकुलेट द गेन, दैट इज a is equals to b plus c minus d वाले तरीके से निकाला जाता है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। 45(4) में हमारा फर्म का अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और हमारे पार्टनर को जो भी एसेट्स दे रहे हैं या मनी दे रहे हैं उसके एक्सचेंज में उसका कितना कैपिटल था, इन दोनों को आप कंपेयर करते हो है ना। तो आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो कितना अपन ने असेट दिया और कितना मनी दिया, मतलब पार्टनर को हमने क्या क्या दिया है, और माइनस करेंगे हम उसमें से पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस निकाल लेते हैं है ना। तो कैपिटल बैलेंस के लिए अपने पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पार्टनर मतलब कौन है, अपना प्रेम, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 32 लाख। 32 लाख में हम लोगों को कैपिटल बैलेंस निकालना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एनी रीवैल्यूएशन और एनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये जो चेंजेस आए हैं, नो डाउट हम अगर पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले उसमें जाएं, थोड़ा सा 11वीं-12वीं के पुराने दिनों को याद करें, तो रिवैल्यूएशन बना करके हम रिवैल्यूएशन का गेन लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैल्यू के गेन को या गुडविल वगैरह के गेन को आप कंसिडर नहीं करोगे। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले तो 32 लाख की कैपिटल दे रखी है अपने को। अब जो लैंड ट्रांसफर हुआ
जो एक्चुअली लैंड ट्रांसफर हुआ, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये जो लैंड ट्रांसफर हुई है इस पर जो गेन हुआ बुक्स में, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गेन हुआ है वो चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना। तो वो जो एक्चुअल ट्रांसफर का गेन है, रिवैल्यूएशन का गेन नहीं, जो एक्चुअल ट्रांसफर का गेन है नेट ऑफ टैक्स, हमको क्या करना पड़ेगा, उतने अमाउंट से इसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उतना अमाउंट इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन का नहीं। तो सबसे पहले तो गेन निकाल लेते हैं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आएगा 40 माइनस इंडेक्सेशन लगेगा, है ना। तो 19,60,000 हमारा गेन हो गया एज पर बुक्स। इसमें से माइनस करना पड़ेगा टैक्स जो कैपिटल गेन में लगेगा अपने को। तो कैपिटल गेन हो रहा है अपना, कहाँ गया, ये रहा, कैपिटल गेन हो रहा है 13,30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% से टैक्स लगेगा प्लस 4% का सेस। तो 276640 का हमारा क्या आ रहा है, गेन आ रहा है ना। तो टैक्स आ रहा है तो 276640। सो बुक्स में, मतलब अकाउंटिंग बुक्स में हमारा क्या होगा कि 19,60,000 का गेन माइनस हमारा 276640 का टैक्स जो हमको पे करना पड़ेगा, ये हमारा माइनस होकर के नेट ऑफ टैक्स बुक्स में क्या आ जाएगा, गेन। तो नेट ऑफ टैक्स हमारा जो गेन आएगा 19,60,000, इसमें से मैं हटा दूं अगर, इसको हमको 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। इस अमाउंट को हमको 4 पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रेम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 420,840 हम लोगों का शेयर हो जाएगा। पर पार्टनर कितना, हर एक की कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 420,840, है ना। अब 420,840 ओपनिंग बैलेंस 32 लाख दे रखा है, टोटल हो गया 36,20,840। अब ये हमारे अमाउंट में से माइनस होगा। अब किस में से माइनस होगा, जितना पोर्शन, जितना भी अमाउंट या लैंड हम लोगों ने प्रेम को ट्रांसफर किया है। तो लैंड कितना दिया है, लैंड हम लोगों ने दिया है नागपुर वाला, राइट। तो 45 लाख का तो लैंड दिया है, जो हमने B + C - D लिखा था। तो 45 लाख का लैंड है, प्लस मनी भी दिया है, कितने का, 15 लाख का। तो लैंड दिया है, मनी दिया है, दोनों को जोड़ करके हमारा अमाउंट आ जाएगा 60 लाख। 60 लाख में से हमारा वो जो हमने कैपिटल बैलेंस निकाला था 36 लाख वाला फिगर था, कितना था वो फिगर, एक बार देख लेते हैं वापस। हाँ, 36,28,40, तो 237960। अब नाउ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्न। ये जो पर्टिकुलर गेन है, ये गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर गेन आपका लॉन्ग टर्म में जाएगा कि शॉर्ट टर्म में। तो जब हम लोगों ने ये प्रोविजन डिस्कस किया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि ये जो गेन होता है दिस इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग असेट्स। फर्म के पास जो भी रिमेनिंग असेट्स हैं उस पर हम इस गेन को क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। और वो जो रिमेनिंग असेट है जब वो बेची जाएगी, तब वो जो एट्रीब्यूटेड गेन है उसको हम सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे। करेक्ट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। सो बेसिकली जितना भी हमारा गेन होगा, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो सपोज किसी का गेन होता है 5 लाख, उसको हमने मान लो 2 असेट्स में एट्रीब्यूट करा, 2.5 लाख 2.5 लाख, है ना। 2.5 लाख हमने एट्रीब्यूट करा, और 2,50,000 जो हमने एट्रीब्यूट किया वो जैसे मान लो यहाँ पर एक लैंड है ए, इसको आपने 2.5 लाख एट्रीब्यूट करा। अब जब ये लैंड हम बेचेंगे आगे चल करके, जब ये भी मान लो 15 लाख में बेचा, ये 15 लाख में से ये 2.5 लाख जो एट्रीब्यूटेड गेन है ये हटेगा, और फिर बैलेंस पर आपको कैपिटल गेन देना रहेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह माइनस करके, ताकि हमारा डबल टैक्सेशन नहीं हो जाए। करेक्ट, तो ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं इस केस में, तो अब इसको एट्रीब्यूट करना है। अब एट्रीब्यूट तो कर देंगे, ठीक है, हमारे पास दिख रहा है, हमारे टोटल 3 लैंड्स थी और एक गुडविल था, तो एक लैंड तो उसमें से चली गई, मतलब हमारा जो गेन है वो बची हुई 2 लैंड्स में एट्रीब्यूट होगा और एक गुडविल में एट्रीब्यूट होगा। बट how do you understand now that how much gain is to be attributed as a long term capital gain and how much gain is to be attributed as per the short term capital gain? तो यहाँ पर हम लोगों को स्पेसिफिकली एक चीज समझनी है, चलिए देखते हैं। तो जो चीज हम लोगों को स्पेसिफिकली मॉड्यूल में भी अब प्रिस्क्राइब करी गई है, तो क्या बोला है, देखो यहाँ पर हम लोगों को रूल 8AA मॉड्यूल ही है, हमारी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ही हम लोग को गिवन है कि डीम्ड कैपिटल गेन विल बी डीम्ड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कब उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, फर्स्ट कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म एसेट एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन, जो एक्चुअली एसेट ही शॉर्ट टर्म है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से, और कैपिटल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक डेप्रिशिएबल एसेट है,
और कैपिटल एसेट बीइंग सेल्फ जनरेटेड एसेट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर है तो ये कहां पर आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म, जो भी चीज शॉर्ट टर्म में कवर नहीं होगी उस सबको आपको एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करना होगा। तो एट्रीब्यूट कितना करेंगे वो तो सिंपल है, वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझाती हूँ। बट एट्रीब्यूट करने के वक्त जो अमाउंट आएगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी, डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी ऑफ एसेट पर हम एट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लैंड्स हैं, पहली लैंड तो 13 में खरीदी है, अब तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हो गया। सेकंड लैंड तो अभी एट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, वो तो ट्रांसफर ही हो गई। तीसरी लैंड भी 13 की थी तो ये भी लॉन्ग टर्म हो गया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अभी हम लोगों ने देखा सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे जितना भी गेन एट्रीब्यूट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द पर्टिकुलर ईयर, करेक्ट। तो अब एट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। एट्रीब्यूशन इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। हम लोगों को ये निकालना है कि जितने असेट्स पर हम गेन एट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सी एसेट्स पर हम गेन एट्रीब्यूट कर रहे हैं, लैंड एट पुणे, लैंड एट मुंबई और गुडविल, तीन चीजों पर। इन तीनों पर टोटल रिवैल्यूएशन का गेन कितना हुआ है और इंडिविजुअल हर असेट पर कितना गेन हुआ है, उस प्रपोर्शन में हमारा गेन एट्रीब्यूट होगा। मतलब लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड विद अ स्पेसिफिक शॉर्ट मॉनेटरी एग्जांपल। तो मतलब क्या कि जैसे सपोज हमारा टोटल गेन हुआ 5 लाख, ठीक है, हमारे पास दो लैंड है, लैंड ए लैंड बी, जो बची है ना, मतलब जो रिमेनिंग असेट है, जो एक गई वो तो गई, लेट अस अज्यूम बची दो है। तो लैंड ए पे रिवैल्यूएशन हुआ है मान लेते हैं 10 लाख का, और लैंड बी पे रिवैल्यूएशन हुआ है मान लेते हैं 12 लाख का, ठीक है। तो टोटल रिवैल्यूएशन का गेन हो रहा है 22 लाख। अब ये 5 लाख किस बेसिस पर एट्रीब्यूट किया जाएगा, 5 लाख इंटू 10/22 इस लैंड पे चार्ज होगा, 5 लाख इंटू 12/22 इस लैंड पे चार्ज होगा। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू एट्रीब्यूट द गेन। अब ये लैंड पे डिपेंड करेगा कि वो गेन लॉन्ग टर्म में आएगा कि शॉर्ट टर्म में। तो देख लेते हैं, चलो हर किसी का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो लैंड एट पुणे में 15 लाख से 50 लाख हो गया, तो हमारा जो ये है वो है 35 लाख हो गया हमारा गेन, रिवैल्यूएशन का गेन। लैंड एट नागपुर तो गया, पुणे सॉरी मुंबई 250 लाख की वैल्यू हो गई 88 से, तो 162 लाख का रिवैल्यूएशन का गेन हुआ। और गुडविल तो जीरो ही थी तो पूरा 70 लाख का क्या हो गया, रिवैल्यूएशन का गेन। मतलब टोटल हमारा रिवैल्यूएशन का गेन है रिमेनिंग असेट्स पर 35 लाख प्लस 162 लाख प्लस 70 लाख, दैट इज 2,67 लाख का हमारा टोटल रिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। अब हर असेट पर आप एट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे, 35 लाख अपॉन 267 लाख, 162 लाख अपॉन 267 लाख, 70/267 रेशो, जैसे कि 35:162:70 के रेशो में हमको इसको बांटना है बराबर, ठीक है। अब इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म में जाएगा, कौन सा शॉर्ट टर्म में, वो भी हमने बात करी। इन दोनों की केस में जो भी है वो लॉन्ग टर्म, और इसकी केस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो शॉर्ट टर्म। आ जाते हैं कंप्यूटेशन पर, है ना। तो देखें 267 में से जो लॉन्ग टर्म वाला है वो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 35 प्लस 162 दैट इज 197, और बचा हुआ आपका 70, है ना, गुडविल वाला। चलो तो अब आ जाते हैं 2379160 को आपको बांटना है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में टोटल आएगा 197 अपॉन 267, तो 197 अपॉन 267 कितना, कहां पर है हमारा फिगर, ये इसको अपन बांटते हैं 197 अपॉन 267, तो पूरा लॉन्ग टर्म का एक साथ आ जाएगा। मैंने दोनों लाइंस को मर्ज कर दिया है, 2379160 इंटू 197 डिवाइडेड बाय 267, 1755410, है ना। और 70 लाख इधर चला जाएगा, तो 2379160 इंटू 70 डिवाइडेड बाय, आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट आई नॉर्मली प्रेफर कि आप दोनों फिगर्स को अलग अलग कैलकुलेट करो, क्योंकि अगर इधर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। मतलब आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसको निकालो और दोनों को टोटल करके देखो तो ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। अगर इसको निकाल के माइनस करके निकाल लिया तो इसमें कुछ गलती हुई होगी तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो 623750 परफेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एट्रीब्यूट करा। अब ये लॉन्ग टर्म में कौन सा जाएगा, शॉर्ट टर्म में कौन सा जाएगा, ये हमने निकाल लिया। लॉन्ग टर्म में भी फिर उसको फर्दर आप बाइफरकेट करोगे, लैंड मुंबई वाली कौन सी जाएगी और पूना वाली कौन सी जाएगी, इंडिविजुअल रिवैल्यूएशन गेन के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन काफी अच्छा है, केस सिनेरियोस बहुत अच्छे बन रहे हैं अभी के एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये एंड देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ चांस कि ये पूछा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1755410 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 623750। आई होप आप सब लोगों को ये वाला ऑप्शन बहुत
प्रॉपरली समझ आया होगा। स्टेप वाइज मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा था। सबसे पहले हमने 45(4) में गेन्स निकाले, A इज इक्वल्स टू B प्लस C माइनस D, मतलब हमने पार्टनर को जितना पे किया है माइनस उसका कैपिटल बैलेंस। जो पेमेंट हुआ है वो रिमेनिंग असेट्स में एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट किस बेसिस पर होगा? रिवैल्यूएशन गेन के रेशियोज पे एट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन गेन के रेशियोज पे एट्रीब्यूट तो कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएगा कि शॉर्ट टर्म में, डिपेंड करेगा कि वो असेट किस कैटेगरी की है। जो हम लोगों ने अभी देखा, गुडविल वाली चीज शॉर्ट टर्म में जाएगी, बाकी के दोनों लाइंस क्योंकि लॉन्ग टर्म असेट है तो लॉन्ग टर्म में जाएंगे, और उस बेसिस पर इनका गेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। एट्रीब्यूट कितना होगा वो भी हमने समझ लिया, और टैक्सेबल जो होगा इस साल उसमें से, मतलब 2379,160 टैक्सेबल है, उसमें से कितना लॉन्ग टर्म में जाएगा कितना शॉर्ट टर्म में जाएगा वो भी हमने देख लिया। नाउ व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 45(4) इन बाय एंड कंपनी। बाय एंड कंपनी डिसोल्यूशन है, 45(4) डिसोल्यूशन में नहीं लगेगा तो नील हो गया, है ना। चलो, व्हाट वुड बी द अमाउंट अपोर्शन टू लैंड एट पुणे एंड मुंबई, ठीक है, to be reduced from the full value of consideration when sold at a future date। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि लैंड एट पुणे और लैंड एट मुंबई पे जितना गेन एट्रीब्यूट होगा, जब आगे चल करके लैंड बेची जाएगी तब उतना गेन क्या हो जाएगा, उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, है ना, सेल्स कंसिडरेशन में से रिड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको आपको 35:162 में एट्रीब्यूट करना है। 35 लाख 162 लाख ऊपर हमने देखा 175540 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 311875 और 143,535। तो अब जब आप लैंड पुणे वाली बेचोगे आगे चल करके, मान लो आपने 20 लाख में बेची, तो 20 लाख में से ये 311875 जो है वो माइनस होगा, फिर आपका अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये सब माइनस करके फिर गेन निकाला जाएगा, तब, ताकि डबल टैक्सेशन नहीं हो। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज सोल्ड फॉर 80 लाख, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल 80 लाख की सेल हुई है, कितने का उस पर एट्रीब्यूट हो रहा है, उस पर एट्रीब्यूट हो रहा है 623,750, तो ये माइनस हो जाएगा सेल्स कंसिडरेशन में से, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आएगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, तो 73,76,250 पूरा का पूरा हमारा कैपिटल गेन होगा जब हम इस गुडविल को बेचेंगे तब, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी कंसिडरिंग द फर्स्ट केस सिनेरियो। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज किसी भी प्रोविजन में तो फील फ्री टू डिस्कस। आगे चलते हैं केस सिनेरियो 2। अब कंपैरेटिवली हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स वाले में आ जाएगा। केस सिनेरियो 1 उन्होंने एकदम ही मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया है हमको, अब धीरे धीरे करके काफी रिलैक्स क्वेश्चंस हैं, तो समझते चलते हैं। चलिए, मिस्टर सुनील श्रीराम एंड श्याम, Sunil, Sriram and Shyam are 3 brothers who are resident Indians in independent retail business of food grains in Pune, Thane, Nagpur. The turnover for previous financial year 2021 was 9, 10 and 12 crores. थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, उससे क्या होता है बार बार क्वेश्चन अपने को ना, अच्छा मैंने लिख ही रखा था, ओके, वो नहीं करना पड़ता, बार बार पढ़ना, मतलब पढ़ना तो खैर ठीक है, बट एक बार चीजें रहती है तो एक दिमाग में बैठता जाता है क्वेश्चन, अच्छा हाँ ऐसे पढ़ा था, ये पढ़ा था। टर्नओवर दे रखा है अपने को, दे रेगुलरली परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर अश्वथ, अ होलसेलर इन मुंबई। टर्नओवर उसका है 18 करोड़, ठीक है, तो हम खरीद रहे हैं, अश्वथ बेच रहा है, फाइन। आई होप शायद थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा, हम शायद जा रहे हैं 194Q या 206C वाले केस में, समझते हैं, मतलब पढ़ के मुझे अभी तक तो यही लग रहा है। They all follow mercantile system of accounting. The aggregate amount credited by the brothers to the account of Mr. Ashwath is given below. It may be assumed that the entire amount relating to Mr. Ashwath for a particular month is credited to his account on the last date of that month and is paid entirely on the last date immediately on the following month. मतलब कि सुनील, श्रीराम और ये जो तीनों भाई हैं, ये अपनी बुक्स में मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो क्रेडिट कब होता है? क्रेडिट होता है हर मंथ की एंड में, मतलब पूरा का पूरा अप्रैल का जो परचेज होता है वो 30 अप्रैल को ये लोग बुक्स में क्रेडिट कर देते होंगे, अपना परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अश्वथ, और फिर अगले महीने की मतलब मे एंड, लास्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, May 31 को इसको क्या करते हैं, पे, है ना। तो क्रेडिट इसी महीने हो रहा है, पेमेंट एक महीने बाद हो रहा है। लाइकवाइज मिस्टर अश्वथ ऑल्सो डेबिट्स द अकाउंट्स ऑफ मिस्टर सुनील श्रीराम ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ विद द अमाउंट ऑफ सेल्स इफेक्टेड ईच मंथ। सेम चीज है, सेम तरीके से दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये अपनी बुक्स में क्रेडिट करता है, ये अपनी बुक्स में डेबिट करता है, ये अपनी बुक्स में पे करता है, ये रिसीव करता है, ठीक है। तो क्रेडिट उसी मंथ में हो रहा है, पेमेंट बाद में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ परचेजेस दे रखे हैं आपको हर महीने के। सुनील्स फ्रेंड मिस्टर कृष्णा entered into one-time transaction with Mr. Ashwath for purchase of food grains of 60 lakhs on 30 June, on which date he credited the set sum to the account of Mr. Ashwath.
he paid the sum to him on 2nd of July. Mr. Krishna's turnover was इतना. ठीक है, इसको अपन बाद में आते हैं, पूरी अलग ही कहानी है. पहले ऊपर ये भाई भाइयों के जो भी है वो खत्म करते हैं. तो इंडिविजुअल अपने को मंथली सारे पेमेंट्स दे रखे हैं कि किसने किसको कितना वो किया है. तो ये अप्रैल में रिकॉर्ड हो जाता होगा और मई में पे हो जाता होगा. मई में रिकॉर्ड होता है, जून में पे होता है ना. ठीक है, आ जाओ. On the basis of given facts above, choose the most appropriate answer. Are the provisions of TDS under Section Income Tax Act attracted? कौन से सेक्शन की बात हो रही है? 194Q. Purchase sale पर 194Q, उधर 2061H. In the respect of purchase transactions, if so, in whose hands, at what rate, and at what point of time? सभी पूछ लिया उन्होंने. तो बेसिकली 50 लाख तक अपने को देखना है. 50 लाख के ऊपर है तो काटना पड़ेगा टैक्स. किस किस को काटना पड़ेगा? जिसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है ना. इग्नोर वन टाइम ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर सुनील फ्रेंड. हाँ ठीक है, चलो तो इसको अभी इग्नोर करना है. अब हम लोगों की केस में कौन कौन लायबल होगा पहले तो ये पता कर लें. टीडीएस, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली टीडीएस पे फोकस कर रहा है. तो अभी हमको ये नहीं सोचना है कि 2061H का क्या इंप्लीकेशन होगा. अभी हमको 194Q का एप्लीकेबिलिटी देखना है. तो 194Q की एप्लीकेबिलिटी आएगी हमारी सिर्फ किस पर? शाम पर. क्यों सिर्फ शाम पर आएगी? क्योंकि टर्नओवर की जो लिमिट होती है कि लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए तो ही आप 194Q में एंटर होते हो. वो वाला कंडीशन सिर्फ शाम फुलफिल कर रहा है, सुनील और श्रीराम फुलफिल नहीं कर रहे हैं. तो मिस्टर श्याम इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 0.1%. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. अब शाम का जो अमाउंट 50 लाख के ऊपर गया, उस एक्सेस अमाउंट पर शाम टैक्स डिडक्ट करेगा. और 194Q का प्रोविजन क्या कहता है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. मतलब हमारा क्रेडिट पहले हो रहा है, पेमेंट बाद में हो रहा है. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है. तो हर मंथ की क्रेडिट के समय ही हमको टैक्स डिडक्ट करना है. रिसिप्ट मतलब पेमेंट तक रुकना नहीं है. तो देख लेते हैं कौन से मंथ में हमारा 50 लाख पार हुआ. तो चलिए देख लेते हैं फिर कि हमको कहाँ से डिडक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो 9,80,000 प्लस 875, जहां 50 लाख हमारा पार हो जाएगा, प्लस 680 प्लस 630 प्लस 815. इधर 4925 तक तो पहुंच ही गए हैं. मतलब नेक्स्ट वाले पे हमारा 50 लाख पार हो जाएगा. तो अक्टूबर से हमारा डिडक्शन शुरू हो जाएगा. यहाँ पे जितना एक्सेस है उस पर कटेगा, बाकी फिर ये तो 50 पार हो ही चुका है तो सारे पेमेंट्स पर. तो फ्रॉम 31 ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपका जैसे ही थ्रेशोल्ड 50 लाख पार हुआ, आपको 0.1% से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, है ना. चलिए आगे चलते हैं. The provisions of TDS, are the provisions of TCS under 194, Income Tax Act attracted in respect of sales transaction by Mr. Ashwath. अब हम लोगों ने एक स्पेसिफिकली बात डिस्कस करी हुई है कि 2061H और 194Q अगर दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप 194Q की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हो. ठीक है, दोनों एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो फिर दोनों को इंडिपेंडेंटली चेक करो. ठीक है, तो अब इस केस में आपको पूछा है कि क्या मिस्टर अश्वथ पे TCS लगेगा. TCS क्या बोलता है? वही प्रोविजन काफी हद तक सिमिलर है. तो जो दोनों पर्सन पे TDS नहीं लग रहा उस पर टैक्स कलेक्शन के प्रोविजंस लगेंगे, लेकिन जिसपे 194Q लग रहा है मतलब शाम का केस, उस पर आपको TDS ही डिडक्ट करना है. इफ सो, from whom does he have to collect tax, at what rate, what point of time? ignore one time transaction. ठीक है, तो वन टाइम ट्रांजेक्शन को अभी इग्नोर किया है. तो ये लगेगा इन दोनों के ऊपर. सुनील और श्रीराम जैसे ही 50 लाख हमारे पार होंगे हमको टैक्स कलेक्ट करना है. नाउ टैक्स कलेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन रिसिट बेसिस. 2061H डेबिट और रिसिट विच एवर इज अर्लियर नहीं बोलता, रिसिट बेसिस पर बोलता है. तो जब पैसा मिला उस मंथ से आपको कंसिडर करना शुरू करना है. तो ये आप अप्रैल नहीं मान करके एक महीने बाद से मानोगे, है ना. तो सुनील की केस में देख लेते हैं. सुनील की केस में आपका सबसे पहला थ्रेशोल्ड कब पार हो रहा है, तो फटाफट हम ऐड कर लेते हैं. चलो 7,10,000 हमको एक महीना अरियर मतलब एक महीना बाद में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट्स दिए हैं ये उस महीने का परचेज है ना. पैसा मिलेगा अगले महीने. 720 इधर हमारा पार हो जाता है नवंबर में, मतलब ये पैसा मिला होगा इसको दिसंबर में, हाँ है ना, एक महीना बाद. तो रिसिप्ट पे काटना है. तो दिसंबर में जब 50 लाख पार हुआ तब ये टैक्स काटना शुरू करेगा फर्स्ट वाले पर. कौन है फर्स्ट वाला? हमारा सुनील पर. टैक्स काटना कब से चालू करेगा? दिसंबर में. और ऐसे श्रीराम का भी निकाल लेते हैं. जैसे ही 50 लाख पार होगा, 685 .
यहाँ पर आ रहा है आपका नवंबर आएगा, क्योंकि अपना टर्नओवर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है इधर अक्टूबर में, पैसा मिला कब होगा, नवंबर में। तो हमारा रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेशोल्ड कब क्रॉस हुआ होगा, नवंबर में क्रॉस हुआ होगा। तो नवंबर में हमको टैक्स डिडक्ट कलेक्ट करना है 0.1% अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। चलो आगे चलते हैं। What would be the rate applicable of TDS if Mr. Ashwath fails to furnish PAN to the deductor? Also, what would be the rate applicable to TCS? मतलब दोनों ही केसेस में आपको ये बताना है कि पैन मतलब पैन नहीं देने का रेट कौन सा होता है। तो 194Q और 2061H के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं 5% और 1% अगर इफ द अदर पर्सन फेल्स टू फर्निश द पैन। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो कि 194Q का क्या प्रोविजन है और 2061H के हिसाब से, दोनों के हिसाब से क्या प्रोविजन है वो हमको चेक करना है। इफ द वैल्यू ऑफ परचेजेस बाय मिस्टर श्याम फ्रॉम मिस्टर अश्वथ was 70% of the monthly figures, then what would be the applicable TDS TCS implications? 70% हो जाता अगर, तो ये 98 लाख का 70%, 68,60,000 की टोटल परचेज हो जाती। मतलब 50 लाख के ऊपर अगर हम देखें तो 18,60,000 पर आपको टैक्स काटना, हाँ टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है ना। 18,60,000। अब यहाँ पर डेट हमारी बदल जाएगी, क्योंकि अगर पूरा अमाउंट हमारा 70% हो गया तो ऑब्वियसली जहां हम पहले क्रॉस कर रहे थे वहां पर अभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमारा अमाउंट निकालना पड़ेगा एक बार के लिए, फटाफट प्लस करके हम 70% कर देते हैं एक साथ। 945 680 तो अब हमारा क्रॉस हो रहा है दिसंबर पर। तो दिसंबर पर से आपको टैक्स रिडक्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, है ना। नाउ यू विल बी सपोज टू कैलकुलेट एज पर 70%। बाकी कर सेम है, मतलब जो ऊपर किया सेम वही करा हमने, बस हर किसी को हमने क्या कर दिया 70% के हिसाब से चेक कर लिया। तो 18,60,000 पर हमको टैक्स डिडक्ट करना है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशंस रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल परचेज ट्रांजैक्शन। तो अब परचेज ट्रांजैक्शन वो जो एक लास्ट वाला था वो क्या दिया है कृष्णा का, इसका टर्नओवर देख लेते हैं पहले तो। नहीं, अच्छा, फॉर द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन 30 जून। ओके, जो 194Q है वो कब से अप्लाई हुआ है, 1 जुलाई से, है ना। ऑन विच डेट ही क्रेडिटेड द सम, हाउएवर, और इसका टर्नओवर 15 करोड़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे बेस्ट पार्ट इस चीज का यही है। बाकी वाले फिर भी बहुत डायरेक्ट थे, इसमें डेट से इन्होंने उलझा दिया। अगर हम लोगों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर। देखो 194Q जो है वो इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2021 से। परचेज हमने करा है 30 जून को, पेमेंट हमने किया है 2 जुलाई को। इन सब 194Q 2061H इसके इंटर एप्लीकेबिलिटीज और क्लैरिफिकेशन और इस सब पे जो सर्कुलर्स और ये रिलीज हुए हैं उसका भी एक स्पेसिफिकली वीडियो है, वो भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप जरूर वो भी देखें, बिकॉज ये सब चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान होना जरूरी है। इस पर इंस्टीट्यूट ने इंटर के आरटीपी में भी क्वेश्चंस डाले हैं 194-2060H, इवन उसमें तो आपका वो ई कॉमर्स वाले भी केसेस उन्होंने मर्ज करे हैं और आपके लिए भी डाले हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, है ना। तो क्या दिया है अपने को यहाँ पर कि 1 जुलाई से इफेक्ट में आया है, ठीक है। अब इसका टर्नओवर 15 करोड़ है, मतलब इस पे 194Q लगेगा। अगर ये नहीं होता 15 करोड़ तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते, सामने वाला सीधे टीसीएस देख लेता, लेकिन इस केस में वो नहीं है, टीडीएस लगेगा। क्योंकि जब 194Q और 2061H दोनों लग रहे हैं तो 194Q अप्लाई किया जाएगा, 2061H अप्लाई नहीं किया जाएगा। 194Q आया है 1 जुलाई में, तो 1 जुलाई पर आपने देखा। अब यहाँ पर 194Q में क्या बोला जाता है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्रेडिट हुआ है 30 जून को और हमारा पेमेंट हुआ है 2 जुलाई। तो मतलब
अगर हमको पेमेंट का मतलब लायबिलिटी आती भी, डिडक्शन की लायबिलिटी आती भी, तो वो कब आती? 30 जून को। लेकिन क्योंकि हमारा सेक्शन इफेक्ट में ही 1 जुलाई को आया है, ये ट्रांजैक्शन 194Q से क्या हो जाता है? स्क्वायरली बाहर हो जाता है। बस हम लोगों को सर्कुलर में स्पेसिफिकली उन्होंने क्लियरली मतलब क्लेरिफिकेशन में क्लियरली दिया है डिपार्टमेंट ने कि इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकन बिफोर 1 जुलाई, भले ही क्रेडिट भले ही पेमेंट, दोनों में से कुछ भी अगर 1 जुलाई के पहले हो चुका है तो वो ट्रांजैक्शन हमारे 194Q से बाहर हो जाएगा। तो क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, एक चीज 30 जून को, ये एक चीज 2 जुलाई को, ये तो लगेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक चीज अगर सेक्शन के आने के पहले हो चुकी है, ट्रांजेक्शन पहले का है, तो 194Q नहीं लगेगा। तो बहुत प्रॉपर उन्होंने उसको घुमाया है। अब आ जाते हैं हम हमारे उस पर कि 194Q नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? 2061H, 2061H। तो इसलिए दोनों की एप्लीकेबिलिटी को ध्यान से समझ के चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। 60 लाख का ट्रांजैक्शन है, रिसीव कब हुआ है इसको? 2 जुलाई को। 2061H पे लगता है रिसिट बेसिस, तो रिसिट बेसिस के हिसाब से जुलाई में आपको टैक्स कलेक्ट करना है 10 लाख के ऊपर। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट द amount of tax to be deducted and collected. With this, the questions of case scenario have been completed. अब शायद 2-3 ऑब्जेक्टिव्स और हैं, 3 या 4, 14, 15, 16, 15, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? चलिए आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, Poor Aid is a charitable trust registered under 12AB. Its main objectives relief of poor. 21-22 में 50 लाख का कॉर्पस मिला। कॉर्पस में भी अमेंडमेंट है, अगेन इस पर भी मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो, हाँ आप लोगों को मैक्सिमम सारे ही मतलब जो मेजर अमेंडमेंट जितने भी आए हैं उनके सबके आपको स्पेसिफिकली सिर्फ उतने पोर्शन पर ही मैंने टॉपिक्स कवर करके डाले हैं, ताकि अगर इन केस एग्जाम से पहले आपको सिर्फ अमेंडमेंट्स एक बार गो थ्रू करने हैं तो वो आपके लिए इजी है, तो यू कैन व्यू दैट एज वेल। 50 lakhs by way of corpus donations, that will be very much helpful for you to just go through a short revision। और उनमें हमने मतलब आपको शॉर्ट में मैंने नोट्स भी मतलब वीडियो के दौरान ही फ्लो चार्ट्स में या शॉर्ट पॉइंटर्स में उसमें साथ में नोट्स भी हैं, तो दैट विल आल्सो गिव यू अ क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट, है ना? चलिए, सो 50 lakhs by way of corpus। अब कॉर्पस के लिए आपको बोल दिया है 11.5 के मोड्स में डालना जरूरी है, तो ही आपको वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 85% is invested. It was of the view that 7.5 lakhs is eligible for unconditional accumulation। नहीं, पूरा का पूरा 50 लाख 11.5 के मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ही बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगा। The trust also withdrew 2.5 lakhs out of 42.5 lakhs deposit in post office saving bank and applied the same for relief of poor। Examine the tax implications if any। तो क्या क्या दिया है? ट्रस्ट इज एलिजिबल फॉर अनकंडीशनल अक्यूमुलेशन, बीइंग ये नो, ये तो नहीं है। Which of the following statements are correct? तो ये तो गलत है। The trust would be eligible to treat 2.5 लाख withdrawn as application for the purpose of trust। नहीं, कॉर्पस में भी अब उन्होंने बोला है कि अगर आप उसमें से पैसा निकालते हो तो वो एप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब बेसिकली अगर हमने उस पर्टिकुलर अमाउंट को जितना अमाउंट हमने वहां से इन्वेस्ट किया है हमारी रेगुलर इनकम से अगर फिर से री इन्वेस्ट हो गया है उतना अमाउंट, तो वो हमारे लिए एप्लीकेशन माना जाएगा, है ना? ट्रस्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू बेनिफिट ऑफ 7 लाख अनलेस इट हैज इन्वेस्टेड इन 11.5। यस, ये सही है। अमाउंट ऑफ 2.5 लाख विथड्रॉन कैन नॉट बी treated as एप्लीकेशन, ये भी सही है ना? तो 3 और 4 बिल्कुल सही है कि 2.5 लाख को अभी एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आपने डाला है तो उसका बेनिफिट आपको मिल चुका है, अब आप विड्रॉ कर रहे हो तो फिर से उसी पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी डेवलपर्स कंप्लीटेड देयर रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोडक्ट्स। अगेन इस प्रोविजन पर भी आपके उसमें अमेंडमेंट है। Ashiana Gardens Limited, Ashiana Gardens in Faridabad in May 21. It comprises of 8 residential units. 3 units were transferred in June and remaining 5 were transferred to home buyers in July. All the units were transferred by way of first time allotment. अब आप लोगों को शायद थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं 43 CA में जो अमेंडमेंट आया है फर्स्ट टाइम बायर्स के केस में, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। The consideration received is 25 lakh and the same was received by prescribed electronic mode. Stamp duty value was 30 lakh. वो जो amendment है 43 CA क्या बोलता है कि if the stamp duty value exceeds 110% of the sales consideration, then the stamp duty value is deemed to be the value of sales consideration. However, the first time allotment वाला case है उसमें जो specific conditions हैं, अगर वो conditions fulfill हो जाती हैं तो ये जो 10% है इसकी जगह पर ये क्या हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर वो conditions fulfill हो रही है कि नहीं। फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट का केस है, हाँ
उस केस में जो आपका टाइम लिमिट होता है दैट इज लास्ट डेट इज 30 जून। 30 जून तक अगर अलॉट हुआ है तो वो 20% लगेगा, उसके बाद अगर हुआ है तो 20% नहीं, नॉर्मल 10% का ही प्रोविजन लगाया जाएगा, है ना। क्या कंडीशन है देख लेते हैं हम एक बार, रिवाइज भी हो जाएगा। So the transfer takes place of residential unit between 12th November to 30th of June. It is first time allotment and consideration is up to 2 crores. अगर ये सारी conditions fulfill होती है तो आप 20% के एलिजिबल हो, अदरवाइज आप 10% के हिसाब से करोगे। तो इसमें जो हमारे जून में ट्रांसफर हुए वो 20% वाले में चले जाएंगे और जो जुलाई में ट्रांसफर हुए वो 10% वाले में चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो 20% है तो 25 प्लस 20% दैट इज 30। तो ये विदिन हमारी लिमिट है। कंसिडरेशन तो 25 लाख के हिसाब से निकालेंगे। कौन से जून में कितने ट्रांसफर हुए हैं? 3। तो 3 पे आपका अमाउंट आएगा 25 इंटू 3, है ना। व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना है अपने को। और जुलाई में 10% लगेगा, तो 10% से तो पार हो ही रहा है हमारा। तो क्योंकि 10% के पार चला गया है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ सेल्स कंसिडरेशन इन केस ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड इन जुलाई, क्योंकि वो 20% से बाहर हो गए क्योंकि वो जून के बाद है। 30 into 5 houses were transferred in जुलाई, दोनों को जोड़कर 225 lakhs दैट इज 2 करोड़ 25 लाख हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड PGBP एज पर द सेक्शन 43CA। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द EBITDA माने क्या? Earning before interest, tax, depreciation and amortization of ABC Limited, an Indian company, is 10 crores for the financial year 21-22. It paid interest of 5.2 crores to PQR Limited, PQR Incorporation, sorry, UK, which is a specified foreign company in relation to ABC. The arm's length price using CUP method was, that is comparable uncontrollable price method, was 4.15 crore, and ABC Limited suo moto made the transfer pricing adjustment on the basis of fact, examine the correctness, assuming that no other interest is payable by ABC Limited. तो बेसिकली हमारा प्रोविजन कहता क्या है? 94B वाला। पहले तीनों चीजों को अपन थोड़ा सा सॉर्ट वो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक सेकेंड। एक्चुअल इंटरेस्ट है 5.20, आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस है 4.15, ये एक्चुअल इंटरेस्ट है। आर्म्स लेंथ प्राइस है 4.15 और जो हमारी 94B के हिसाब से मैक्सिमम अलाउएबल इंटरेस्ट होता है वो होता है 30%। तो 3 करोड़ मैक्सिमम अलाउएबल है ना, मतलब हमने, ठीक है चलो अब चलते हैं क्या क्या बोला है अपने को इसमें। तो टोटल हम लोगों को जो एडजस्टमेंट देना है वो देना है 3 करोड़ और 5.2 के हिसाब से, तो 2.2 करोड़ के हिसाब से हमको टोटल वो देना है, मतलब इफेक्ट देना है। द आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट वुड, अच्छा पहले सॉल्व भी कर ही लेते हैं कि आर्म्स लेंथ कितने का आएगा इसमें और हमारा 94B का कितने का आएगा। तो एक्चुअल और आर्म्स लेंथ प्राइस का जो डिफरेंस आएगा ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट में चला जाएगा और बाकी बचा हुआ हमारा 94B में चला जाएगा, है ना। तो 5.2 माइनस 4.15, 1.05 ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट में जाएगा और 2.2 का एडजस्टमेंट देना है, 1.5 हमने इसमें डाल दिया, 2.2 माइनस 1.5 दैट इज, सॉरी 1.05, 2.2 माइनस 1.05, 1.15 हमारा 94B के एडजस्टमेंट में जाएगा, है ना। चलो देख लेते हैं। आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट वुड बी 1.05, हाँ। द एक्सेस अंडर विल बी 1.15 करोड़। सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर 2.2, नहीं गलत हो जाएगा ये। द एक्सेस इंटरेस्ट वुड बी 2.2, नहीं, नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ये भी गलत है। एक्सेस इंटरेस्ट वुड बी 2.2 करोड़, नहीं गलत है। द आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट वुड बी 1.05, द एक्सेस इंटरेस्ट वुड बी 1.15, एक्सेस इंटरेस्ट वुड बी 1.15, हाँ यहाँ तक बराबर जा रहा है। Secondary adjustment is required to be made for 1.05 unless ABC opts to pay additional income tax and has paid such additional income tax, correct है ना। तो secondary adjustment हमको 1.05 का करना है और 94B का adjustment 1.15 का होगा। MNO Incorporation and PQR are two country M-based companies engaged in trading of oil seeds. MNO Incorporation sold oil seeds of the value 1.8 crore to XYZ, an Indian company, through an agent in Delhi who secures orders in India mainly for MNO. अच्छा, MNO PQR
लिख लेने से क्या हो जाती है, चीजें ना काफी क्लियर हो जाती है। MNO टू XYZ थ्रू एजेंट इन दिल्ली, इसका दिल्ली में एक एजेंट है जो कि मेनली सिर्फ इसी के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन वाला केस आ रहा है। PQR इनकॉर्पोरेशन ऑल्सो सोल्ड ऑयल सीड्स ऑफ 2 पॉइंट, यहाँ पे 1.8 करोड़ है, यहाँ पर 2.1 करोड़ ड्यूरिंग ये थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंट कैरिंग ऑन एन एजेंसी बिजनेस इन मुंबई। इंडिपेंडेंट एजेंट है मतलब वो इसके तो ऑर्डर लेता ही होगा और भी दूसरे लोगों के ऑर्डर्स भी लेता होगा, ये इसका स्पेसिफिक वाला एजेंट हो गया। Serves to many other oilseeds trading companies which are not related to PQR in any manner. Both do not have a PE in India. Examine taxability based on the provisions contained in section 9(1). ठीक है। Income of MNO attributable to the operations carried out in India by its agent in Delhi in respect of sale transactions with XYZ would be deemed to accrue as India. Correct, बिल्कुल सही। MNO के जितने भी operations ये agent इंडिया में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कैरी ओवर कर रहा है, वो सारे के सारे MNO के डीम्ड टू बी अक्रूनाइज इंडिया हो जाएंगे बाय वे ऑफ बिजनेस कनेक्शन, तो उसके ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ MNO and be chargeable in tax in his hand. Income of PQR attributable to the sale transactions with XYZ would be deemed to accrue or arise in India in the hands of PQR and be chargeable to tax in his hands. So in that particular case again इसके सिर्फ वही ट्रांजैक्शन चार्जेबल टू टैक्स होंगे जो इसने डायरेक्टली XYZ के थ्रू करे हैं। बाकी इस केस में जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस इसके एजेंट के थ्रू हुए हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। इस केस में सारे नहीं ले सकते क्योंकि वो एजेंट इंडिपेंडेंट है, वो दूसरों के लिए भी ऑर्डर सिक्योर करता है। सो फर्स्ट वाला पॉइंट विल बी टैक्सेबल, सॉरी करेक्ट। आगे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर राज इज एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन कंट्री T फॉर लास्ट 10 years. His brother also left India 10 years before and settled in country Q. He has become a citizen of Q. Prior to that, they have always been in India since birth. Their parents were also born in India. Both of them come on a visit to India during the entire months of June, July, August every year. June, July, August. ठीक है. Both brothers decide to start a business in India and hence visited India for setting up business on 1st of December. अच्छा, अप टू 2021 और इस पर्टिकुलर ईयर में कब आए हैं? दिसंबर में आए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 120 दिन पार हो गए। द इनकम ऑफ मिस्टर राज एंड राहुल इज 20 lakhs ईच, आउट ऑफ विच इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज 5.5। तो राज और राहुल 20 माइनस 5.5 इसका फॉरेन सोर्सेज का है और इसका 4.5 फॉरेन सोर्सेज का है। तो इंडिया से जो आ रही है, आई होप आप लोग को सबको क्लियर हो रहा होगा प्रोविजन हमारा कौन सा जा रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है हमको, है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया वाला केस, दोनों ही इंडियन सिटीजन हैं। 15.5, ठीक है। तो इसका तो लेस देन 15 lakhs। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं? इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि नॉर्मली बाहर रहता है, इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, तो 120 days इन द करंट ईयर, 365 days और मोर। तो ये अभी तक कितने दिन रह रहे थे? ये जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। ये भी हो रहा है फुलफिल, लेकिन उसमें एक और कंडीशन होती है कि इनकम फ्रॉम इंडिया इज मोर देन 15 lakhs। तो ये वाला केस यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, तो राज उसमें नहीं आएगा। राहुल उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो राहुल विल बी कंसिडर्ड एज RNOR। तो राहुल इज RNOR एंड राज इज अ नॉन रेसिडेंट। बट राज इज अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सो विद दिस we complete the objective part of our RTP that has been released for CA final May 22 attempt। जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में करा है वो काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस में भी पिछले कुछ समय से काफी मेजर चेंजेस आए हैं। इन केस ऑफ डीम्ड रेसिडेंट, RNOR, ये जो 15 lakhs वाला हमने प्रोविजन पढ़ा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेक श्योर आप सारी कंडीशंस को अच्छे से चेक करें। सो एक क्रोनोलॉजी बिठा लें दिमाग में। सबसे पहले रेगुलर कंडीशंस को चेक कर लो, 182, 365, 60 days, फिर 7 वो अपना 730 days, एडिशनल कंडीशंस वगैरह। एक्सेप्शंस जब भी 63, 65 देखो तो एक्सेप्शंस को जरूर ध्यान दो। एंड देन ऐसे करते करते एक स्टेप वाइज आप लोग आगे बढ़ते बढ़ते आपका कंक्लूजन पर पहुंचे कि रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है कि RNOR है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द ऑब्जेक्टिव पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी नाइस क्वेश्चंस। बहुत कुछ क्वेश्चंस बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। जैसे जो पहला केस सिनेरियो था वही उन्होंने उसी तरीके से दिया है।
जरूर पहले आप लोग इसको खुद से एक बार सॉल्व करके देखें, जहां पर भी आपको दिक्कत आती है इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन आप लोगों के एंड पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, या इन यू आर like you want to discuss something about in general, not specifically a question, but regarding the presentation in the examinations or time management or any kind of issue if you are facing, feel free to contact. All the very best for your examinations.